ہم سنی بریلی والے ہیں، ہم سنی بریلی والے ہیں، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ لگانے والے ہیں، ہم سنی بریلی، ہم سنی بریلی والے ہیں، ہم سنی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے جلال الدین صاحب قبلہ صورت نوساری میں جا کر اصغر دیوبندی کو سامنے سے للکارا۔ اصغر دیوبندی ایک دم بوکھلا گیا، اور جب ویڈیو ریکارڈ کے دوران جب ہمارے جلال الدین صاحب ریکارڈ کر رہے تھے تو موبائل کے اوپر جھپٹا لگایا، اس طرح جھپاٹا لگایا جیسے اس کو بہت بڑا صدمہ ہو گیا ہو۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ جھپاٹا لگایا۔ تو سبھی سنی بھائی سے گزارش ہے، حق کو پہچانیے، اور اس کے علاقے میں جا کے اس کو سامنے سے اس کو للکارا اور بولا تو حق پہ ہے تو اپنی کتابوں سے بات کر، میں اپنی کتابوں سے بات کروں گا۔ تو میں صورت نوساری کے جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ بھائی ہیں، ہمارے جلال الدین صاحب کو سپورٹ کیجیے اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ آئے۔ ابھی وہ نوساری میں ہی وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کا قیام ہے، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس آڈیو کو سننے کے بعد ان کو سپورٹ کیجیے اور ان کو چینل کو بھی سپورٹ کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم السلام حضرت۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے حضرت؟ حال کیجیے، جی اور آپ تو پتہ چل گیا ہوگا آپ کو، آج پتا چل گیا، ہم دیکھ لیا، انتقال ہو گیا دیوبندی اصغری بیگم کا۔ ہلچل مچ گیا ہے نا، آپ کال طوفان، ریکارڈ کیجیے میرا۔ ہلچل نہیں، طوفان زلزلہ آ گیا ہے۔ جی ہلو ہلو، جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ ادھر ہی ہے کیا؟ ابھی اسی علاقے میں ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ۔ ابھی نور حسن بھائی کال ریکارڈ کر رہے ہیں نا؟ ہاں، ریکارڈ ہو رہا ہے میرے پاس کال، اب ایک اسی لیے میں نے منٹ رکیے، ایک منٹ، میں سائلنٹ اوپر چھت کے اوپر جا کے آرام سے بات کروں گا۔ ہاں ابھی ایک گھر میں اس، اور اگر ویڈیو بنے ہوئے ہوں تو اور بھی بھیجو۔ ابھی سنیے نا، میں ہاں ابھی ایک دو منٹ رکیے، میں ذرا پانی پی لوں سفر کر کے۔ ابھی ایک جگہ جہاں میرا منزل ہے وہاں پہنچا ہوں، پانی پی کے میں چھت کے اوپر جا کے آرام سے بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کروں گا۔ اصغری بیگم کے پلے مجھے کال کر رہے ہیں بار بار، میں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ اس پہ ڈالا اسٹیٹس پہ۔ ایک چلے کے پلے کو میں نے بولا کہ اصغری بیگم کا انتقال ہو گیا ہے۔ چینل پہ ڈالیے اور اصغری کا فوٹو کے ساتھ ڈالیے، ہاں، اور اصغری کے منہ پر ایسا زوردار تماچا مارتا ہوا میں یہ کہ آپ کو فوٹو بھیجوں گا، جی ہاں۔ اور اصغری جو میرا موبائل چھین رہی تھی، ہاں 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 جھپٹا ماری اصغری ہاں، نے ایسے موبائل جیسے چھیننے چیل، کے لیے۔ ایسے جیسے چیل جو ہے کسی گوشت لوتھڑے پہ یا کسی بچے کا ہاتھ میں سے کوئی چیز چھین کے لے کے آتی ہے نا تو جھپٹ ایک دم سے اڑ کے آتی ہے، ہاں، ہاں ایسے ہی کر رہا تھا سالا شیطان۔ اور سنیے تو، یہ دیوبندیوں کا المیہ ہے، ہر بار یہ عذر پیش کرتا ہے دیوبندی لوگ کہ مناظرہ کرنے سے ہنگامہ ہوگا، بدتمیزی کی شروعات کرتے ہیں، بریلوی لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں۔ آج ثابت ہو گیا شرارت ہنگامہ کون کرتے ہیں، جی ثابت ہو گیا۔ جی اور کل ہم سے بات ہوئی تھی، کل 13 دسمبر، کل دوپہر کو تقریباً 11 بجے بات ہوئی تھی، ہاں۔ میں نے ایک دیوبندی ہے، اس کا نام ہے ہدایت، ہاں، اس دیوبندی سے میں نے کال کیا، کال کر کے بولا، وہ بھی صورت میں ہی کہیں رہتا ہے، اس کو میں نے کال کیا کہ اپنا ایڈریس دے، تو وہ بول رہا ہے رک ذرا ایک منٹ لائن پہ لیتا ہوں۔ وہ اس نے اپنی امی کو یعنی اصغری بیگم کو لائن پہ لی، ہاں۔ تو اصغری بیگم لائن پہ آ کر مجھے کہا کہ اس کا جواب دے، اس کا جواب دے۔ پھر میں نے کہا کہ کل آ رہا ہوں تیرے وہاں، میں سامنے مقابلہ کروں گا۔ تو وہ بول رہے اپنے ادارے سے تو اپنا تصدیق نامہ لے کے آ،
फिर मैंने कहा जब मैं तस्दीकनामा भी लेके आऊंगा फिर भी तू नहीं बैठेगा। हाँ जब तू तस्दीकनामा लाऊंगा तो भी नहीं बैठेगा, मैं चैलेंज से कहता हूँ। हाँ तो बोले नहीं तस्दीकनामा पहले मेरा तस्दीकनामा बेकार हो जाएगा, कोई फायदे का नहीं। हाँ। तू पहले तेरे कमेटी से इजाजत ले, कमेटी के इजाजत के बगैर तू मुनाजरा नहीं कर सकती। जी और कमेटी ने पहले इजाजत नहीं दिया तो हम वापस आए, 2 बार जाके वापस आए, तीसरी बार मैं आ रहा हूँ। हाँ इसलिए तू कमेटी से इजाजत ले, पुलिस प्रशासन की इजाजत ले, मैं आ रहा हूँ। मैं तेरा सिर्फ झूठ बेनकाब करने के लिए आ रहा हूँ। जी तो बोले तू मुझे मुनाजिर मानता है, मैं तुझे मुनाजिर नहीं मानता। तो फिर मैंने कहा कि मुनाजिर मैं भी तुझे नहीं मानता, तेरा झूठ का पर्दाफाश करने आ रहा हूँ। हाँ, तू अगर मुझे मुनाजिर नहीं मानता मत मान। तो हम जो बैठेंगे तेरा झूठ का पर्दाफाश करने, तू कॉल कर करके दलील मांगता है, कॉल करके बहस करता है, क्यों करता है जब मुझे मुनाजिर नहीं मानता? तो इसलिए सामने बैठकर बात होगी। तू जो बार बार तेरी खुजली है ना कॉल करने का, तेरी खुजली मिटाने आ रहा हूँ मैं। जी। तो उसके बाद वो बोली कि चल आजा, ईशा के बाद बैठेंगे। मैंने कहा ईशा के बाद रात में तू हमा करेगा तो बदतमीजी करेगा, और वहाँ पे वो हमारा कोई आदमी नहीं है, वहाँ से सवारी भी नहीं मिलती रात में। हाँ, गांव देहात है, हम दिन में आकर 6 बजे तक तेरा इंतजार करूंगा। मैं 6 बजे तक तेरा इंतजार करूंगा। अगर 3 बजे से 6 बजे के अंदर तू नहीं बैठा फिर तेरी शिकस्त का ऐलान कर दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए तेरी बोलती बंद हो जाएगी। और ये मत समझना कि मैं इस इलाके से हट रहा हूँ, इस इलाके में मैं मदरसा कायम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ, इसी इलाके में मैं जगह ढूंढ रहा हूँ। असगरी के बिल्कुल सीने पर चढ़कर रोजाना मैं ललकारूंगा असगर को, असगर खबीस को मैं रोज ललकारूंगा। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, तेरी कोई देवबंदियों में हिम्मत है, दम खम है, अपने 50 मौलवियों को लेके बिठा और थानवी की, गंगोही की और नानोतवी की किताब से मैं साबित करूंगा कि तुम सारे देवबंदी काफिर व मुर्तद हो और तुम नबी के गुस्ताख हो, और नबी के गुस्ताख हरामी होता है, इस लिहाज से सारे देवबंदी हरामी है, मैं साबित करूंगा। तो असगरी 3 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर मैंने उसको टाइम दिया था। अच्छा। फिर आज हम जब पहुंचे और हमारी इत्तेफाक से हमको बस भी गलती से हम जगह नहीं पहचान पाए, आगे के स्टॉप पे छोड़ दिया और वहाँ से कोई सवारी नहीं मिल रही थी। फिर सवारी बदल के हमने 5-6 सवारी बदल कर हमने वहाँ पहुँचने में 10-15 मिनट लेट हो गया। हम 3 बजे से पहले पहुँचने वाले थे, पहुँचे 3:16 पे। हाँ, 3:16 पे वहाँ एक दरगाह शरीफ के पास पहुँचे और हमने दरगाह का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। हाँ, और कहा कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब असगरी अगर सामने नहीं बैठी, 6 बजे तक अगर हमारे सामने नहीं बैठी तो असगरी की शिकस्त का ऐलान कर दिया जाएगा। फिर असगरी को मैंने कॉल किया, असगरी नहीं उठाई मेरा कॉल। फिर एक देवबंदी, अनीस देवबंदी असगर का चेला, उसको कॉल किया। कॉल करके मैंने कहा कि तुम्हारे असगरी को लाइन पे लो। बोले आप फोन नहीं उठाएंगे। मैंने कहा फोन क्यों नहीं उठाएंगे, तुम जब भी फोन करते हो, मैं फोन करता हूँ तो असगरी को लाइन पे लेते हो। आज क्या हो गया, आज मैं पहुंचा हूँ। तुम देखो, जो सच्चा होगा वो सामने बैठेगा, झूठा होगा तो सामने नहीं बैठेगा, मानते हो? तो उस अनीस ने कहा हाँ ये बात सही है, जो सच्चा होगा वो सामने बैठेगा। तो फिर लगाओ असगरी को। फिर फोन किया, 2 बार फोन किया, असगरी ने फोन नहीं उठाया। हाँ, फिर मैंने उसको समझाया, प्यार से कहा कि मेरे भाई तौबा कर लो देवबंदियत से, देवबंदी सच्चा नहीं है वरना सामने बैठता। आज लास्ट तुम्हारा चांस, आज अगर असगरी नहीं बैठा तो तुमको देवबंदियत से तौबा करना पड़ेगा। उसको समझाकर मैंने कॉल काट दिया। उसके थोड़ी देर के बाद फिर असगरी का फोन आया। तो असगरी बोले क्यों फोन किया था? मैंने कहा कि मैं पहुंच चुका हूं तुम्हारे गांव में, तुम आकर मुझसे मुलाकात करो, आमने सामने बैठो और तुम्हारे झूठे हवाले का पोस्टमार्टम करूंगा, तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करूंगा। तो असगरी बोल रही है ईशा के बाद बैठेंगे। तो मैंने कहा ईशा के बाद तुमको चोरी करने का मौका मिलेगा और मुझ पर हमला करने का, अंधेरे में फायदा उठाकर हम पर हमला करोगे, इसलिए मैं दिन में तुम 6 बजे के अंदर तुमको मिल के 6 बजे तक इंतजार करूंगा और 6 बजे तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा, पूरे शहर का मैं दिखाऊंगा कि इस शहर में मैं पहुंच गया हूं। और असगरी मेरे सामने बैठ नहीं रही, कॉल कट कर रही है, कॉल नहीं उठा रही है, बात नहीं कर रही, सामने नहीं बैठ रही है असगरी, तो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद बोल रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर कॉल आया, एक बार कॉल आया, बोले ईशा के बाद बैठ। फिर दोबारा कॉल आया, बोले चल अभी कहाँ बैठता है, बोल आजा हमारी मस्जिद में। मैं बोले तेरी मस्जिद में नहीं बैठूंगा,
तेरे शहर में आया हूँ और सारे लोग तेरे हैं, मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं ताने तानहा, मेरे साथ एक भाई है सादिक भाई, सूरत में रहते हैं। सादिक भाई मेरे साथ है और मैं हूँ, मैं दो आदमी आया हूँ। मेरे शहर में कोई नहीं है, मैं तेरे सामने बैठूंगा, ये हमारे सुन्नी मस्जिद है, सुन्नी मस्जिद में आ जा। वो बोला, बोलकर मैं सुन्नी मस्जिद में पहुंचा। हाँ। और वो भी बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं सुन्नी मस्जिद में पहुंचा तो हाँ, इत्तेफाक अफसोस की बात है, हमारे सुन्नी भी इतना बेज़मीर है, इनको सुन्नियत का कोई दर्द नहीं है और सुन्नियत का कोई फिक्र नहीं है। मौलाना के पास जाके मौलाना को मैंने कहा कि मौलाना साहब मुझे ये मस्जिद में मुनाजरा करने की इजाजत दीजिए, असगरी आ रहा है। तो मौलाना साहब बोले ये मस्जिद की कमेटी ने मना किया। अब मौलाना साहब की कोई गलती नहीं है, असल में वहाँ के आवाम देखिए कह रहे हैं कि हम भी आला हजरत वाले। अब आला हजरत के सामने इतनी गुस्ताखी कर रहा है इस खबीर, फिर भी इन लोगों को कान में जू नहीं रेंगती। हाँ। तो आखिर में मौलाना साहब ने बिल्कुल मना कर दिया, कमेटी वालों का दबाव है कि इस मस्जिद में कुछ नहीं होगा। तो हम मस्जिद के बाहर बैठे हैं, इसी मस्जिद के बाहर मैं और सादिक भाई। मस्जिद के बाहर भी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा है। अभी वो मस्जिद वाले अगर तहकीक करेंगे, कैमरा फोटो निकालेंगे, वीडियो निकालेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा। वीडियो मिल सकता है। उस वीडियो को अगर वो वीडियो मिल जाए, सारी हकीकत उस वीडियो में अब दर्ज है वहाँ जी। कौन हंगामा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम तो गए थे और हमको बुलाया था असगरी ने मुनाजरा करने के लिए। और जब हम पहुँचे तो वहाँ मस्जिद के बाहर हम बैठे हुए थे, तो असगरी बाइक लेके हमको देखते हुए गया। दो आदमी, एक लड़का गुंडा जो बदमाशी कर रहा था ना, बदतमीजी कर रहा था, वो वीडियो में दिख रहा है। असगरी की वीडियो शायद व्हाट्सएप पे भेजा होगा, यूट्यूब पे डालेगा वो लोग भी। तो एक लड़का बदतमीजी कर रहा था, जरा ताकतवर एक लड़का है, उसको लेके घूमने एक राउंड घूम के गया असगरी। एक राउंड घूम के गए, उसके बाद वापस आई, आकर आजा आजा आजा, ये इधर क्यों आया, ऐसा करके वो लंगड़ते लंगड़ते एकदम इतना गरज रही थी, इधर क्यों आई। मैंने तू बुलाई इसलिए मैं आया, तू बुलाई है, सच्चा कौन झूठा कौन पता चलेगा। किताब से बात करने, हम तो लड़ाई करने के लिए थोड़ी आए, हम हंगामा करने बदमाशी करने नहीं आए, हम तेरे साथ आमने सामने बैठकर किताब से मुकाबला करने के लिए आए। तू जो हवाला देता है वो हवाले की पोल खोलने के लिए आए, हम सामने बैठ। तो हम बात करें तो वो आदमी हमको धक्का मुक्की हमारे साथ किया और उसके बाद आसपास के घर वाले दरवाजा खोल के जब निकले तब इनके कलीजा धक धक करने लगे। ये सोच रहे थे ये लोग कि आप कोई नहीं, सुन्नी कोई साथ नहीं देगा। पहले से सुन्नियों की सेटिंग ये लोग कर चुके थे। ये सारे सुन्नी इतना सुलह कुल्ली है और यहाँ के उलमा, इलाके के उलमा इकराम भी मेहनत नहीं कर रहे और सुन्नी इतना सुलह कुल्ली है। एक बार मैं गया था ना, पहली बार सबको जब मैं खोल कर 40 मिनट मैंने बयान किया था और उस जोश में आए थे, फिर उनको लगा कि जलालुद्दीन की बात अगर सुनेंगे तो हमें रिश्तेदारी से दूर रहना पड़ेगा, देवबंदियों से रिश्ता नहीं रखना है और देवबंदियों के साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ हमसे छूट जाएगी। अब इन देवबंदियों के साथ हमें रिश्तेदारी है, खाना पीना, इनके साथ ताल्लुकात, दोस्ती, दावत सब कुछ इनके साथ एक साथ चल रहा है। तो ये जलालुद्दीन का साथ देने से हमारा नुकसान होगा। दुनियावी फायदे ये लोग देख रहे हैं, दुनियावी चंद फायदे, चंद सिक्के की मफाद के खातिर ये सुलह कुल्ली लोग सबके सब, जैसा करबला में, कूफा में जैसा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ देने से सारे लोगों ने इनकार कर दिया, वही कूफा का नजारा आज गंडेवी में देखने को मिला, असगरी के गांव में। और असगरी फिर भी हमसे जीत नहीं सकी। मैं तने तनहा, मैं और हमारे सादिक भाई, हम दो लोग वहाँ खड़े थे और सुन्नी मस्जिद के आसपास में सारे सुन्नी लोग तमाशा देख रहे थे। कौन बोल रहे हैं? वो असगरी को जबरदस्ती बिठाकर किताब जो हम लेके आए थे, 7-8 किताबें हम लेके गए थे, कहाँ से बोल रहे हैं? किताबें दिखाकर हम उनके कुफर को साबित करते, असगरी को झूठा साबित करते। लेकिन हमारे सुन्नियों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ। मैं इसी इलाके में 1 हफ्ता मैं अभी दौरा करूंगा, जहाँ मुनासिब होगा, जहाँ कुछ लोग साथ देने वाले होंगे, उस जगह पर मैं मदरसा कायम करूंगा
اور اس علاقے میں آنا جانا میرا ہمیشہ جاری رہے گا جب تک میں زندہ ہوں، اور یہاں پر میں انشاءاللہ بڑا ادارہ قائم کروں گا اصغری کے بالکل قریب میں، وہ اس گاؤں کے 4-5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کے اندر انشاءاللہ۔ چلیے تو انشاءاللہ۔ آخر افسوس کی بات ہے ہمارے سنی لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہمارا دل دکھائے ہیں۔ یہ لوگ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کہنے کا کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شان میں یہ روز گستاخی کرتا ہے، روز اعلیٰ حضرت کے شان میں بد زبانی کرتا ہے، جھوٹا حوالہ دیتا ہے۔ وہی حوالہ ہم مانگنے کے لیے آئے تھے، تو ہمارے بھائی ان کو بھی ابھی تک ہم بھائی کہتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ابھی کفر صادر نہیں ہوگا، ابھی ان کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ابھی تک دعویٰ کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے ماننے کا، لیکن ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، دعویٰ جھوٹا ہے۔ وہ لوگ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہوتے تو ڈٹ کر میرے ساتھ دیتے، میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ اگر 10 لوگ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اصغری کی آج ہی اس کی چھٹی کر دیتے ہم، آج ہی اس کا جینا تو حرام ہو چکا ہے، لیکن یہ بے شرم ابھی اس گاؤں میں ہے، اس گاؤں سے بے دخل ہونا پڑتا۔ 10 لوگ صرف میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ الحمدللہ آج بھی میں ہمت نہیں ہارا ہوں، میں رو رو کر نماز کے بعد اللہ سے دعا کیا ہوں، اللہ ہمارے سنی بھائیوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے سنی بھائیوں کے اندر دین کا جذبہ عطا فرما، اور اللہ والوں کے عشق و محبت ہمارے سنی بھائیوں کے اندر عطا فرما۔ آمین آمین۔ یہی دعا کرتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں اکیلا گیا تھا، میں اور صادق بھائی ہم دونوں گئے تھے، اور ہمارا یہی منشا تھا کتاب سے، اگر لڑائی کرنے تو ہم 2 آدمی نہیں جا سکتے، اب بتائیے ہنگامہ کرنے 10 آدمی کے سامنے 2 آدمی ہنگامہ کرنے جائیں گے؟ ہم کتاب لے کے گئے تھے۔ اصغری اگر دیوبندی سچا ہوتا تو وہ بیٹھ کر وہ جو بھی حوالہ پیش کرتا سارے حوالے دکھا دیتا ہے نا؟ ہاں، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ ذرا مجھے مشورہ دیجئے، میں اس گاؤں کے لیے کیا کروں؟ وہاں 4-5 سنی مسجد ہے، لیکن ایک نہ مولانا میں ہمت ہے ڈٹ کر وہابی کے خلاف بولنے کے لیے، نہ وہاں کے کمیٹی والے مولانا کو عالم کو اجازت دیتے ہیں، نہ وہاں کے کوئی عوام تھوڑے شرم و حیا رکھنے والے ہیں کہ میری ماں کو اگر گالی دے تو میں برداشت کروں۔ کوئی حلالی بیٹا ماں کی گالی برداشت نہیں کر سکتا، باپ کی گالی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے اللہ والے ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے اللہ والوں کی عزت ہے، قدر ہے، ہمارے دین کی حفاظت کرنے والے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے، ہمارے نبی کے گستاخ، ہمارے ولی کے گستاخ ہمارے سامنے گھوم رہے ہیں، اور کوئی عالم آیا ہے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے کوئی عالم دین آیا ہے، لیکن کوئی ساتھ دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جو میرا ساتھ دیے، جس نے بھی جس لحاظ سے بھی ساتھ دیے، آس پاس کے گھر والے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی گھر سے باہر نکل کر ہنگامہ کو روکا، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ہدایت پر گامزن رکھے، اور ان کو ایمان عطا فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے۔ غیر مسلم کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور وہاں کے اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت سے نواز دے۔ ہاں، 2-4 غیر مسلم بھی ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت سے نوازے، ایمان کی دولت سے ان کو بھی مالا مال فرمائے، اور جو سنی بھائی تھوڑی بہت ہمت دکھایا ہے ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دیکھیے سنی کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بیچارے ہمدرد لوگ ہوں گے، ان کے دل میں یہ ہوگا کہ بہت سارے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں ہے نا، ملائم دل والے لوگ، رحم دل والے لوگ، کہ یار چلو 2 لوگ لڑ رہے ہیں بچاؤ، ہاں، ہے نا۔ وہ اگر دیکھیے وہ ان کی بھی ہمت نہیں تھی ہمارے پر ہاتھ اٹھانے کی، ہاں صرف ہنگامہ کر رہے تھے، اور باقی وہ بھی اصغری بھی کوشش کری ہاں۔ کہ محلہ سے گنڈا موالیوں کو جمع اچھا، کرے۔ میں نے سنا ہے آپ جو ہے کراٹے باز ہو اور کئی سارے دیوبندروں کو اکیلے بھاری ہو، تو سالے کی ورائٹی نہیں بنائی گئی وہیں؟ نہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ اٹھا سکتے تھے ہم بھی، وہ جو پہلے آپ ان سے کہتے دیکھو سمجھا دو، ورنہ میں ان سب کو اکیلا کافی۔
मैं सुनिए बहुत सारे देवबंदियों को पटक पटक के दीवार के साथ पटक के मारा, समझे। अच्छा। हाँ, ऐसा भी मारा मैंने, लेकिन मैं हाथ उठाकर पहले मुजरिम नहीं ठहरना चाहता। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। मैं हाथ पहले उठाता तो मैं गुनहगार, मैं जुर्म मुझ पर साबित हो जाता। हाँ 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 जी। इसलिए मैंने पहले हाथ नहीं उठाया। अगर वो हाथ कोई उठाता मेरे ऊपर, हाँ, उसकी खैर नहीं थी। अच्छा, चाहे आज मैं इस कुर्ता इरादे से गया था, कुर्ता वगैरह आज भी मैं फाड़ इस दिया था इरादे क्या से आपका? दो आदमी का मेरा इरादा आज ये था हाँ कि अगर मुझ पर कोई हाथ भी उठाया या मुझ पर हमला किया, या हाँ तो मैं मरूंगा या सामने वाला मरेगा। हाँ मैं अपना शहादत मुझे कबूल है। हाँ और देवबंदी काफिरों को मैं दुनिया के सबसे गलीज काफिर मानता हूँ। जी, मैं बेशक। दुनिया से देवबंदी से बड़ा किसी को काफिर नहीं मानता। क्योंकि किसी हिंदू को भी पूछो अल्लाह झूठ बोल सकता है क्या, तो वो बोलेगा नहीं बोल सकता। जी 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 कोई जी। क्रिश्चियन को भी पूछो, क्रिश्चियन भी बोलेगा नहीं बोल सकता। हाँ कोई यहूदी को पूछो, यहूदी भी नहीं बोलेगा अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता। जी जी जी। कोई ईसाई, यहूदी, सिख, हर काफिर बोलेगा कि नहीं अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता। जी लेकिन देवबंदी इतना हरामी काफिर है, इतना गलीज काफिर है, इतना बदबूदार काफिर है कि देवबंदी कहता है कि माज अल्लाह झूठ बोल सकता है। और एक बेशर्म देवबंदी नमाज में खड़े होके कहता है सुबहानका अल्लाहुम्मा। अब सुबहानका का मतलब अल्लाह पाक है, तो यकीन के साथ अगर कहता है कि अल्लाह पाक है तो फिर झूठ भी बोल सकता है, तो फिर यकीन नहीं हुआ ना झूठ, अल्लाह पाक है बोलकर। जी अल्लाह तो जी झूठ से पाक है। जी, बेशक बेशक, अल्लाह यकीन हर के ऐब से साथ पाक है। और झूठ जो है वो बहुत बड़ा ऐब है। सब खराबियों की जड़ झूठ है। तो हर आयब से पाक है। तो ये बात सुबहानका अल्लाहुम्मा कहकर ये देवबंदी यकीन के साथ कहता है या शक लेकर कहता है? शक लेके बोलता है सुबहानक अल्लाहुम्मा। हाँ, तो नमाज इनकी नमाज नहीं है, इसीलिए हमारे आला मैं तो पहले ही बोलता हूँ, मैं तो पहले अलर्ट कर बैठा हूँ हर देव के बंदर को। माशाअल्लाह, आपके जज्बा को भी अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, इजाफा फरमाए। आपको भी अल्लाह ताला सलामत रखे। आप आमीन। मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएगा, और ऐसे मदद फरमाएगा कि आप भी नहीं सोच पाएंगे, आप शानो गुमान भी नहीं कर सकते। आज बहुत अल्लाह मदद हुई। जी 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 जी। सुनिए, हमारा उसने हाथ में मोबाइल लेके पूरा वीडियो बनाया हमारा। अच्छा, पूरा वीडियो बनाया उसने मोबाइल लेकर, हमारा वीडियो। लेकिन हम वीडियो बनाए सिर्फ 30 सेकंड तो उसके सारे वीडियो पर हमारे 3 सेकंड भारी है कि नहीं? जी 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 जी। तो 30 सेकंड का वीडियो उसने सेंड नहीं करा इधर उधर कहीं भी? हाँ, उसने सेंड नहीं करा इधर उधर कहीं भी? वो तुम्हारी जो गुफ्तगू हुई है उस गुफ्तगू की भी हंगामा उसने खुद किया। हाँ, तुम्हारी जो गुफ्तगू हुई है, तुम्हारी जो गुफ्तगू हुई है, हाँ, वो गुफ्तगू कहाँ है? हमारे कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, वो मेरे चैनल पे डालूंगा। अरे हाँ, डालो कम से कम। वहाँ जो गुफ्तगू हुई है वो कहाँ है? वो हमारे उसकी और गुफ्तगू नहीं हुई ना, जाते ही उसने आते ही हंगामा शुरू कर दिया। अच्छा, बात करने के लिए तैयारी नहीं हुआ हरामखोर? आते ही हंगामा शुरू कर दिया। हम मस्जिद के बाहर बैठे हुए थे, आपको दास्तान मैंने सुनाया। उसकी बोलती बंद हो गई, वो बिखर गया, वो उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए मैं जाके मस्जिद के बाहर मैं बैठा। मस्जिद वाले ने तो इजाजत नहीं दिया। हाँ, और उस वक्त असर का टाइम भी नहीं हुआ था। हाँ, और टाइम था 3:30 बजे। हाँ, हंगामा 3:30 बजे हुई। हाँ, और असर की नमाज वहाँ पर तकरीबन 4:45-5 बजे असर की नमाज है उस इलाके में। तो अभी कोई नमाज का टाइम भी नहीं था, सब लोग घरों में। गर्मी है गुजरात में, अभी भी गर्मी है। अच्छा, सर्दी का मौसम नहीं है यहाँ। अच्छा अच्छा, यहाँ धूप है, बहुत तेज धूप। अच्छा, तेज धूप में लोग घरों में बैठे हुए थे, घर का दरवाजा सबका बंद था। अच्छा, और वो ये समझ के आया था हाँ, कि ये 2 आदमी बैठे हुए हैं, हम 2 आदमी इसके, ये तो डरे हुए होंगे, हमारे ऊपर हाथ भी नहीं उठाएंगे, और हम इसके ऊपर हाथ उठा के कुछ हम टॉर्चर करेंगे, बदतमीजी करेंगे। और बदतमीजी टॉर्चर करने की भी हिम्मत नहीं थी उसको। हाँ, सिर्फ बदतमीजी करके दूसरा एक वो लड़का हाँ, बदतमीजी माहौल खराब करने की कोशिश की उस शैतान ने। नहीं, वो लड़का हमसे बदतमीजी करेगा हाँ, और असगरी वीडियो बनाएगी। हाँ, ये उसकी नीयत थी। और वीडियो बना के चैनल पे अपलोड करा के थोड़ा पैसा कमाएगा, हाँ, थोड़ा व्यूज बढ़ेगा। हाँ, मेरे साथ बदतमीजी करके वीडियो बनाने का उसका इरादा था, उतना ही था। अच्छा अच्छा, हाँ, वो लड़का सिर्फ बदतमीजी कर रहा था। हाँ, तो
बैठने की नौबत ही नहीं आई। हम किताब लेके गए थे, हमारे पास किताब नहीं थी। 2 छोटी छोटी किताब मैं लेके घूमता हूँ, एक तहजीरुन्नास और एक हिफ्जुल ईमान। बाकी बड़ी बड़ी किताबें मेरे लागे ज्यादा हो जाता है, दूर दराज का सफर रहता है, कभी पैदल चल के घूमता हूँ मैं तो उतना पैसा वाला नहीं हूँ कि दूसरा खादिम रखूँ या मैं गाड़ी पे, प्राइवेट गाड़ी पे सफर करूँ, ऐसा तो मेरे औकात नहीं है। मैं पैदल सफर करता हूँ, लगेज ढो के घूमता हूँ, चालू ट्रेन में सफर करता हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा किताबें नहीं ले आ सका। मेरे जगह पर तो सारी किताबें मौजूद है। फिर हम यहाँ एक बड़ा इदारा है नौसारी में, अच्छा, यानी असगरी के वहाँ से 30 किलोमीटर दूर, अच्छा, यहाँ पर 30-40 किलोमीटर दूर एक नौसारी शहर है, वहाँ पर मदरसा अनवार रजा। अच्छा, तो उस मदरसे में जाके हमने किताबें ली, बराहीन कातिया, सिरात मुस्तकीम, तहजीरुन्नास, सिरात मुस्तकीम, तक़वियतुल ईमान, फतावाए रशीदिया और तज़किरतुर रशीद, ये सब किताबें हम लिए। और वो सभी पुरानी किताबें माशाअल्लाह मदरसे में रखे हुए हैं। तो वो किताबें लेकर वहाँ पहुँचे थे। हम सिर्फ किताब दिखाना हमारा मकसद था, और हम 2 आदमी हंगामा करने तो जा नहीं सकते थे। जी जी, सही बात है। हाँ, तो इनको बैठना नहीं था हमारे सामने। जी जी जी। तो और असगरी से जो कल बात हुई थी मेरी, हाँ, मेरा चैनल फैजान मुजाहिद मिल्लत, मेरे चैनल को भी, आपके चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं सभी हजरात से गुजारिश कीजिए कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, हमारे चैनल को भी देखे, फैजान मुजाहिद मिल्लत जी। और फैजान मुजाहिद मिल्लत ने मैं असगरी का जो मेरे साथ गुफ्तगू हुई थी, इंशाअल्लाह कल सुबह को अपलोड करूंगा या रात को ही अपलोड करूंगा मैं। चलिए और मेरी ये गुफ्तगू आप सभी हजरात तक पहुंचाए, और सभी सुन्नी भाई अपने अपने इलाके में वहाबियों का मुकाबला करे, और इन वहाबी खबीसों को हर जगह इस तरह रुसवा व जलील करे जैसा आज मैंने असगरी बेगम को करके आया हूँ। ये कई बार जलील और रुसवा हो चुका, मगर बड़ा बेगैरत है, बड़ा बेहया है। पता नहीं इसकी अम्मा ने क्या खा के इसको पैदा किया है कि इतना बेशरम बनाया इसको। इसके अम्मा ने वो जो गंगोही ने जो ताबीज दिया था ना, ओ अच्छा, याकूब नानुतुबी और कासिम नानुतुबी ने मिलकर जो समझ गया, उसको जो ताबीज दिया था हाँ, जो मिठाई लेकर आई थी बाद में। हाँ, बाद में मिठाई लेकर आई थी, वो मिठाई जिस ताबीज दिया था ओह, अच्छा, उसी का बच्चा है ये। हाँ, उसी औरत का बच्चा है। वो जो सब समझ गया मैं कहानी। याकूब नानुतुबी से ताबीज लेकर पैदा करी थी। असगरी बेगम उसी औरत का बच्चा है। हाँ, नहीं, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसने कहा कि मेरा सारे घर का खर्चा है बस इसी पर है। हाँ। अब भाई यार बात समझे, तभी इतना बड़ा बेगैरत है ये। जी। और ये नानुतुबी का इतना आशिक इसीलिए है, हाँ, नानुतुबी का ताबीज से ये पैदा हुआ ना। इसलिए। ओहो, हाँ भाई, बात समझ में, समझ में आई आपको? हाँ, आप समझ गया। अच्छा, और बताइए, कोई और सवाल हो या मेरे लिए कोई मशवरा हो तो बताइए। नहीं, बस यही पूछना था कि क्या मामला रहा, कुछ बात हुई नहीं हुई, ये वीडियो डाली, हंगामा बर्पा हो गया, इसकी जो है हालत खराब हो गई, वहाँ जो है ये बात नहीं कर सका। हाँ, अब इंशाअल्लाह यहाँ मेरे लिए दरवाजा खुल गया है। हंगामा जो देख लिया ना, लोग थोड़े बेदार होंगे इंशाअल्लाह, सुन्नी लोग बेदार होंगे, मुझे उम्मीद है। अभी बेदार करने वाला कोई नहीं था। जी, उलमा इस्लाम बस सिर्फ अपना नौकरी कर रहे हैं, कमेटी वाले भी सुलह कुल्ली टाइप के हैं, इजाजत नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो काम उनका भी कारोबार चल रहा था जी, और हमारे उलमा भी अपनी नौकरी कर रहे थे। हाँ, तो हमारे उलमा इकराम, देखिए, दीन के मामले में ना कोई दिल पे नहीं ले रहा है। हमारे उलमा भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आवाम उनका साथ नहीं देते। अब वो कोई सख्ती से बोले तो छुट्टी कर देंगे उलमा को, इसलिए हमारे फिर ऐसी नौकरी कर के नहीं रहे वाली बात है। अगर हर जगह का मामला ऐसा हो जाए ना, मतलब लीडर बन के ऐसी नौकरी कर के लिए नौकर क्यों बन रहे हो? बादशाह बनो ना, नौकर बने हुए तो बनो नौकर, फिर नौकरों जैसी इज्जत होगी। तो हम नौकरी कर रहे हैं, हम क्या करें, हम ऐसे उलमा को तो हम, अरे नौकरी करनी है तो रसूलुल्लाह की नौकरी करो ना, गुलामी करनी है तो रसूलुल्लाह की गुलामी करो ना। लोगों की गुलामी में क्या मिलेगा? लोगों की गुलामी तो गलत रास्ते पे ले जाएगी। का नौकर हूँ,
जी नौकरी करनी है तो रसूलुल्लाह की नौकरी करो। बेशक बेशक बेशक। हाँ, लोगों की नौकरी करके तो अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं लोग। हाँ, करूँ मदा अहले दुअल रजा, हाँ, पड़े इस बला बेशक। में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए नान नहीं। बेशक बेशक, पाराए ना नहीं। ये आला हजरत ने हमको सिखाया है, जी इसलिए हम उस दर का गदा हूँ मैं, क्या है उस दर का गदा हूँ मैं जी, जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बेशक। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैं नौकरी करता हूँ और मेरी इस नौकरी पर मुझे फख्र है। और मैं हिम्मत, मेरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गुस्सा इतना आता है। मैंने एक बार सोचा कि मुझे इतना गुस्सा आता है कहीं कहीं मेरा बीपी तो कोई ऐसा कुछ मेरे सेहत में तो खराब नहीं, कोई फर्क नहीं आया। तो मैं एक बार बीपी चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि बहुत इतना नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, आपका कोई टेंशन मत लीजिए। अच्छा। आप दिन का काम करते रहिए। गुस्सा आता है ना आपको ये आपकी ईमानी हरारत है। हाँ, बाकी आपके अंदर कोई बीमारी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दिन ब दिन मेरा पारा और बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हाँ, अल्लाह वालों का फैजान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और आज तक इतने मस्जिदों में जाकर देवबंदियों को ललकारा, देवबंदियों को लताड़ा जी। और उनके गढ़ में घुसकर उनको ललकारता हूँ, किसी में हिम्मत नहीं होती जी। ये गाय भी मदद है अल्लाह ताला की। बेशक और मुझे बेशक देखकर उन मौलवियों को भी सीखना चाहिए जो डर के मारे कमेटी से डर कर कुछ नहीं बोलते जी। और मैं कमेटी से डर कर अगर नहीं बोलता तो मैं जिस मस्जिद में मैं नौकरी करता था, देवबंदियों की मस्जिद में, जहाँ पर देवबंदी जब था, तो मैं जब देवबंदी था तब भी कोई तबलीग जमात आता ना, तबलीग जमात के दर्स में बैठकर तबलीग जमात वाले कोई गलत बयानी करता, फौरन मैं टोकता था। तो उस देवबंदी मस्जिद के कमेटी वाले भी मुझसे ऐसे ही नाराज रहते थे, मेरे ऊपर चिढ़ते थे। ये मौलाना तबलीग जमात के खिलाफ है। मैंने कहा खिलाफ कहाँ बोला मैंने, मैं इस्लाह किया, मैंने इस्लाह किया, उनकी गलती पे टोका मैंने। तो देवबंदी कमेटी से भी मेरा झगड़ा होता था। मैंने कभी भी गलत बात को दिल से मैंने तस्लीम नहीं किया, सर झुकाकर मैं डर के मारे गलती को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। जी जी जी, तो इस सिफात की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दिया और हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी साहब दामद बरकातुहुमुल कुदसिया खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत वाला को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, तादेर उनका साया हम पर कायम दायम रखे। हजरत का करम नवाजी है कि हजरत के जरिए से मुझे हिदायत मिली और आज तक ऐसा हजरत लड़ते लड़ते पूरा पोरबंदर को वहाबियों से खाली कराया। माशाअल्लाह। एक भी वहाबी उस शहर में मौजूद नहीं है। पूरा इंडिया में ऐसा एक शहर है जहाँ पर एक भी वहाबी नहीं। पता है वो भी देवबंदी में ही थे। हाँ, वो भी देवबंदी में ही थे। वो भी देवबंदी थे, हजरत भी देवबंदी थे। जी जी, मालूम है मुझे। सुन्नियों से लड़ते थे, फिर जब हकीकत का पता चला तो हजरत खुद देवबंदियों के ऐसे खिलाफ हुए कि सारे शहर को देवबंदियों से पाक कर दिया। ठीक है हजरत, मैं जरा थका हुआ हूँ, अब जरा इत्मीनान से बैठता हूँ थोड़ी देर। बहुत देर गुफ्तगू हुई, ज्यादा लंबी हो जाए तो लोग लोगों को बोर हो जाए। और आराम से रहिए पहले, ठीक है। और जहाँ पे निकलिए थोड़ा वीडियो वहाँ के आसपास का बनाइए और कुछ भाई को साथ में रखिए, खास दुआ में याद रखिए। और ये आपका चैनल बड़ा है, इस चैनल पे मेरा पैगाम पहुंचेगा तो यहाँ के इलाके के लोग मुझे जरा नौसारी और आसपास के जो भी सुन्नी भाई इस वीडियो को सुनेंगे वो नूर हसन भाई से राब्ता करें और नूर हसन भाई से मेरा नंबर ले, इंशाल्लाह ऑडियो के जरिए पहुंच जाएगी। हाँ, बहुत सारे सूरत, नौसारी और यहाँ आसपास के गांव का मैं नाम बताता हूँ। यहाँ बिल्ली मोड़ा एक कस्बा है। हाँ, वो असगरी जिस गांव में रहता है उस गांव से 5 किलोमीटर दूर बिल्ली मोड़ा है। और वहाँ से करीब में एक गांव है उमर गांव, और उसके बाद है वापी,
और वलसाड़, इस इलाके में वापी, वलसाड़ और दीव दमन, सिलवासा, सूरत, नौसारी, ये जो इलाका है इस इलाके में वहाबियत बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत सारे बाबा पीर लोग सिर्फ नजराना लेके लोगों को क्या है ठग रहे, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, सिर्फ नजराना ले रहे हैं, नजराना का हक अदा नहीं कर रहे हैं। जी बेहतर तो सही बात उनको भी पैगाम दे रहा हूँ कि माशाअल्लाह जो भी नेक नियति के साथ, इखलास के साथ दीन और सुन्नियत का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जो भी हमारे मुर्शिदीन, हमारे पीर लोग, मुर्शिद लोग और जो उलमा इकराम है जो दीन का काम नहीं कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन मसलक आला हजरत के महाफिज बनाए आमीन और उनको मसलक आला हजरत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। लोगों को आमीन, ईमान आमीन। अकायद बचाने के लिए आपको एक मौका दिया है, जी, आपको बेशक। एक ओहदा दिया है, आप अपने ओहदे का इस्तेमाल करें जी और लोगों की ईमान की फिक्र करें। अगर जी। लोग गुमराह हो जाएंगे तो आपका जो नजराना जो दे रहे हैं वो आपसे हट जाएगा, तो आपका दुनिया भी नहीं मिलेगा जिस दुनिया को आप लेकर ऐशो आराम कर रहे हैं। आखिरत में तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि इतने लोग तुम्हारे मुरीद थे, उनके ईमान तुमने बचाया क्यों नहीं? जी इतने लोग तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ते थे, उनको तुम मसले के आला हजरत का पैगाम क्यों नहीं बताया? जी तो नौसारी और इस इलाके में जितने जगह का मैं नाम लिया हूँ, इस जगह के जो भी सुन्नी भाई सुन रहे हैं मेरा साथ दे और इस फितने को मैं कुचल के ही दम लूंगा। मैं सारी ताकत झोंक दूंगा असगरी बेगम की हर झूठ को बेनकाब करने के लिए, और माशाअल्लाह। रोजाना मैं उसको ललकारूंगा और रोजाना मैं उस शहर में एक चक्कर लगाऊंगा। मेरे पास मोटरसाइकिल भी है और मैं 10-15 किलोमीटर के अंदर कहीं रहने का मैं इंतजाम कर रहा हूँ। अभी वहीं पे हो कहीं दूसरी जगह हो, ये बताओ? हाँ, अभी वहीं पे हो नौसारी में ही, कहीं दूसरी जगह हो? अभी मैं सूरत आया हूँ, कल अपना सामान लेकर मैं अच्छा। कल जाऊंगा नौसारी में। अच्छा। सूरत आया हूँ मैं अभी। अच्छा, सूरत वहां से कितना दूर है उसके यहाँ से? सूरत से नौसारी 40-45 किलोमीटर है। बस? फिर नौसारी से वो है 30-35 किलोमीटर। अच्छा अच्छा यानी टोटल हमें 70 किलोमीटर सफर है, 70 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा। तो नौसारी रास्ते में ही पड़ता है जो मदरसा बता रहे हो आप? हाँ, नौसारी रास्ते में ही पड़ता है। रास्ते में नौसारी पड़ता है। नौसारी हम उतर के मदरसा जाऊंगा कल मैं, और मदरसा जाकर 1-2 दिन मदरसे में क़याम करूंगा। उसके बाद मैं वहाँ से आसपास में दौरा करके देखूंगा, जिस गांव में भी मुझे रहने का मौका मिले उस गांव में रहूंगा। और यहाँ से असगरी बेगम को रोज मेरा आमना सामना होगा इंशाअल्लाह। नहीं, उसी गांव में या तो रहो, हाँ, या तो उसी गांव में जाके रहो। उसी गांव में रहने का मैं तलाश कर रहा हूँ, किराए हाँ, उसी गांव में रहो जाके। किराया पे रूम 5-6 हजार के अंदर कोई रूम मिलेगा, तलाश कर रहा हूँ। और हाल जैसा रहेगा 5-6 हजार के 10। अरे कोई सुन्नी भाई आपको ऐसे ही रख लेगा यार। कोई भी सुन्नी भाई, अभी तक हम आपका पैगाम पहुँचेगा आपके चैनल के जरिए से, तो इंशाल्लाह कोई भी सुन्नी भाई हमारी मदद करेंगे। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, अल्लाह के फरिश्ते आपकी मदद करेंगे, और नेक मोमिन जो है ना, ईमान वाले, वो आपकी मदद करेंगे। जी जी जी, हाँ इंशाल्लाह। तो कोई सुन्नी भाई अगर मुझे रहने का इंतजाम कर दे, सिर्फ मैं बाकी खर्चा सब करूंगा। मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाऊंगा और दिन भर इंशाल्लाह दीन और सुन्नियत की मैं तबलीग करूंगा माशाअल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम आवाम तक पहुंचा दे आपके चैनल पे। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह। भाई इस इलाके के हैं, वो नूर ईमानदारी के साथ आप अपना काम कीजिएगा उधर। आप भी बोल दीजिए कि आपके नंबर से राब्ता करके जलालुद्दीन का नंबर। अरे आपका नंबर खुद मैं दे दूंगा, या आपका नंबर आप डाल दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। आपका नंबर तो पड़ा हुआ है। इस रिकॉर्डिंग को आपके चैनल पे डालिए और मेरा नंबर भी डालिए, आपका नंबर। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह, ये ओनली असरी नेटवर्क पे आपका पैगाम पहुंच जाएगा। जी जी जी, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा, और ईमानदारी के साथ काम करिएगा, ठीक है जी? ईमानदारी के साथ काम करिएगा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप आज तो बहुत मर्तबा आप तक आपसे मुलाकात हुई है,
اور آپ مجھے اچھی طرح مجھ سے واقف بھی ہیں، اور کوئی بدگمانی پھیلانے والے ہاں، بہرحال پھیلا کر بھی ناکام ہاں، رہا۔ ہاں ایسا کوئی قدم مت اٹھائیے گا جس سے بدنامی کا کوئی بھی نقطہ چھوٹے، ہے نا، کوئی بھی بدنامی آنے کا کوئی خطرہ رہے، جی 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 انشاءاللہ، وہ تو الحمدللہ کیونکہ میں جب ایسی سے باتوں سے سنی بہت ہوا ہوں۔ دور رہتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں میں ایسی باتوں سے۔ جی ہاں انشاءاللہ بہت جب سے سنی ہوا ہوں الحمدللہ، دیوبندی رہتے ہوئے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، جی، جب سے سنی ہوا اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے، ساری دنیا مجھے جاننے لگی، بے شک بے شک، اور اس میں بڑے کوئی بڑے شک نہیں۔ علماء مجھے دعائیں دیتے ہیں، جانتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اور تمام سنی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ متحد رہ کر سنیت کا کام کرنے کی توفیق عطا چلیے، فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں مرتے دم تک قائم و دائم رکھے، آمین آمین۔ ثم آمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جی ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے حضرت، السلام علیکم جزاک ورحمۃ اللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔